Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Leo Ascendant and the predictions for the month of July 2023. For the Leo Ascendant, the Lord of the ninth house as well as 10th house are combining together in the Ascendant in the first house, and the Ascendant Lord Sun is also in the 11th house, which means that if you compare it with all the other ascendants, the Leo ascendants are going to have the best possible time in the month of July. This combination of the two lords combining together would mean that you will get a very good opportunity to rise at your professional front in the month of July. Sun is going to move into the 12th house on 17th of July, and all those who want to move to a foreign country will also see a best time or an opportunity to move there from 17th of July to 16th of August. But overall, this is going to be a very good month for the Leo ascendant people. Now let us look at other planets also one by one. The fifth house lord Jupiter is currently positioned in the ninth house of luck and is aspecting your first house through the fifth aspect as well as the fifth house through the ninth aspect. This is the opportune time for the Leo ascendant people to plan for a child, as Jupiter is going to aspect both the first as well as the fifth house, and they are going to protect any conception that takes place. And as a result, you should try to take advantage of this benefic position of Jupiter, which is going to last till April 2024. All the people who are students will continue to get benefited for the next 1 year, and the people who are planning to get admission in universities will also see success in their endeavors. For your ascendant, Jupiter also rules the speculative tendencies, and all those who are engaged in speculation or stock market will also see a favorable time in the month of July. If you want to take short-term bets, then 14th to 16th of July is the best time frame, and then again the time frame from 24th to 27th of July will be favorable from the speculation perspective. In case you want to take some contrarian bets, then again 28th to 30th of July will also be a good time to go for them. Mars is the owner of the ninth house of luck as well as fourth house for you, and it is going to remain in your first house from 1st of July to 17th of August, and it is also getting aspected by Jupiter. What it means is that you are going to get benefited money wise if you are associated with the real estate sector, because both the Lord of the fourth house and the ninth house are getting combined in the first house. So all those people who deal in property, who real estate or anything that is related to lands and properties, they are all going to get benefited in the month of July, and a lot of cash flow is visible for them in this month. Saturn is the lord of both your service as well as the business houses. So all those people who want to do well in the job front, the best time for them in July is from 10th to 13th of July. They will see their reputations getting enhanced at the workplace during this point of time. And all those who are getting their own business or are working in the family business, for them, apart from 10th to 13th of July, the time frame from 21st to 23rd of July are also very favorable from growing in the business. Saturn also rules over your married life, and Saturn demands discipline from the individual. So the married life of the Leo ascendants is going to become more and more routine till 2025. The fun quotient is going to be sucked out of it, and discipline is going to take over. So all those people who are single and are keen to get married will see a favorable time in July in the one third part of the month. So time frame from 1st to 10th of July is very favorable and may provide opportunity to get married. Let us also look at Mercury. Mercury is the lord of the second and 11th houses, and it rules both the money flow houses. It is going to enter in your first house on 25th of July, and you will immediately see a good time on the financial front. So time from 25th to 28th of July is going to be very beneficial from the financial point of view as well as from the cash flow perspective. Now there are also certain dates where you need to be very cautious in the month of July. These dates for you are from 3rd to 6th of July and 17th to 20th of July. Watch out for your back during these 8 days, and you should also postpone any key decisions that you are planning to take
during these 8 days. So if you look overall, this is going to be a cracking month for your ascendant, especially if you are career oriented. It is the right time for you to rise and shine at the workplace. So that's the summary for you for this month. If you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसे निकलेगा। सिंह लग्न के लिए जुलाई के महीने में नवमेश मंगल और दशमेश शुक्र दोनों ही प्रथम भाव में युति बनाएंगे, और इसके अलावा लग्नेश सूर्य भी 11वें भाव में बैठे हुए हैं। इसीलिए अगर हम सारे लग्नों की तुलना करें जुलाई के महीने में, तो सिंह लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना सबसे शानदार साबित होगा। इसकी वजह यही है कि दोनों ही नवमेश और दशमेश का लग्न में कंबाइन होना बहुत ही स्ट्रांग योग बनाता है। और जितने भी लोग करियर ओरिएंटेड हैं और अपने कार्यस्थल पर ऊंचा उठना चाहते हैं, उनके लिए जुलाई के महीने में एक बहुत अच्छा मौका बनेगा शुक्र और मंगल के युति होने से प्रथम भाव में। इसके अलावा लग्नेश सूर्य भी 15 जुलाई तक 11वें भाव में ही बैठे रहेंगे, जो कि लाभ स्थान का ही मालिक है, और इसकी वजह से लाभ होते हुए पहले 15 दिनों में भी दिखते हैं। इसके बाद सूर्य 12वें भाव में मूव कर जाएंगे और 17 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक 12वें भाव में बैठे रहेंगे। तो जितने भी लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका रहेगा विदेश यात्रा करने का। इसके अलावा अगर आप अपने आप को चैरिटी इंस्टीट्यूशन से जोड़ लेते हैं, या फिर अगर आप अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हैं, तो भी ये अच्छा समय निकलेगा। अदरवाइज आपके लिए बहुत लोनली समय हो जाएगा 17 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय। अभी बाकी एक एक करके दूसरे ग्रहों पर भी नजर डालते हैं। पंचमेश गुरु अभी 9वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि भाग्य स्थान कहलाता है, और यहाँ से ये प्रथम भाव को 5वीं दृष्टि से और 5वें भाव को 9वीं दृष्टि से देखेंगे, और पूरे 1, 5 और 9 त्रिकोण को गुरु का दृष्टि इसके थ्रू संबंध बन रहा है। अगर आप इस समय में संतति को प्लान करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु आपके प्रथम और 5वें भाव दोनों को देखेगा, और यहाँ पर ये बैठ के इन तीनों भावों की रक्षा करेगा, और ये कॉम्बिनेशन अप्रैल 2024 तक बना रहेगा। तो आपको इस गुरु की स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए पूरा अगला साल काफ़ी अच्छा रहेगा, अप्रैल 2023 से 2024 तक। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी ये गुरु आपके लिए अच्छे मौके बना के देगा और आपको इन कार्यों में सफलता मिलेगी। गुरु आपके लिए पंचम भाव के मालिक होने की वजह से शेयर बाजार और सट्टा बाजार से भी संबंध रखते हैं आपके लग्न के लिए। तो अगर आप इन किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या आप स्वयं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, तो 14 से 16 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है आपके लिए लाभ कमाने की दृष्टि से। इसके अलावा 24 और 27 जुलाई का समय भी इसी चीज़ को लेकर अच्छा रहेगा। अगर आप कॉन्ट्रेरियन बेट्स यानी कि मार्केट से उल्टी बेट्स लेना चाहते हैं, तो 28 से 30 जुलाई तक का समय भी इसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इसके लिए आप अपने एंड पे सोच समझ के रिसर्च करके इस तरह की बेट्स लीजिए। मंगल आपके प्रथम भाव में बैठे रहेंगे 1 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक, और यहाँ पर ये शुक्र के साथ यानी कि धन के स्वामी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और इस पर गुरु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप कैसे भी करके जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी से रिलेटेड एरियाज में काम करते हैं, या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का सोच रहे हैं, तो उसमें इस समय में जब तक मंगल यहाँ बैठा है 1 जुलाई से 17 अगस्त में आपको अच्छा लाभ होने की संभावना दिखाता है। शुक्र भी आपके लग्न में बैठकर आपको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रहा है, लेकिन ये सारी जो लाभ होंगे, ये आपके जमीन जायदाद या मकान दुकान संबंधित खरीदने बेचने से ही होते हुए दिखते हैं। शनि आपके लिए 6वें और 7वें भाव के मालिक बनते हैं, तो जो भी नौकरी पेशा लोग हैं या बिजनेस पेशा लोग हैं, उनका सी लगने के लोगों के लिए शनि ही स्वामी बनता है। तो अगर आप नौकरी में चमकना चाहते हैं, तो 10 से 13 जुलाई तक का समय जुलाई के महीने सबसे अच्छा है। इस समय में आपको अपने कार्यस्थल पर प्रसिद्धि मिलती हुई दिखती है, या आपके अपने रेपुटेशन में भी इजाफा होता हुआ दिखता है। अगर आप स्वयं के बिजनेस में इंगेज हैं, तो 10 से 13 जुलाई के समय के अलावा 21 से 23 जुलाई तक का भी समय आपके लिए बिजनेस में ग्रोथ करने के हिसाब से सबसे अच्छा है। शनि आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो वो आपके पति या पत्नी को भी दर्शाता है। तो इस समय चूंकि शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर 2025 तक बैठे रहेंगे, तो आपके लिए शादीशुदा जीवन बहुत मोनोटोनस और रूटीन की तरह का हो जाएगा। शनि आपसे डिसिप्लिन डिमांड करता है, इसीलिए आपको शादीशुदा जीवन में भी एक रूटीन बना के चलना पड़ेगा। और जितने भी लोग
मौज मजा की दृष्टि से इसको देखते हैं तो वो इस समय में पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप अभी सिंगल हैं तो आपके लिए जुलाई के महीने में 1 से 10 जुलाई तक का समय फेवरेबल है शादी करने की दृष्टि से। आपके लग्न के लिए बुध द्वितीय और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और दोनों ही भाव धनदायक स्थान है। अभी बुध आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन 25 जुलाई होते ही यह आपके प्रथम भाव में आ जाएगा, जहां पर ये अगले 2 महीने तक बैठा रहेगा। तो जैसे ही बुध आपके प्रथम भाव में आएगा वो इमीडिएटली अपना परिणाम आपको प्रदान करेगा। जैसे ही ये यहाँ आता है तो 25 से 28 जुलाई तक का समय अगर आप फाइनेंस या कैश फ्लो की दृष्टि से देखें तो ये सबसे अच्छा समय है आपके लिए जुलाई के महीने में। अभी हर महीने में आपको कुछ दिनों में सावधान रहना पड़ता है और ये दिनों में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना चाहिए, वाद विवाद से भी बचना चाहिए। तो जुलाई के महीने में ये दिन आपके लिए हैं 3 से 6 जुलाई और 17 से 20 जुलाई। इन 8 दिनों में सावधानी बरतिए। अगर आप कुल मिला के देखिए तो आपके लग्न के लिए सबसे बहुत अच्छा समय है जुलाई का। और जितने भी लोग करियर ओरिएंटेड हैं उनके लिए कार्यस्थल पर चमकने का ये सबसे अच्छा महीना है। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।